about the experimental stress analysis. We used to apply this technique in complex problems where the analytical solution is not possible. We apply this approach for the validation. Even we have the numerical solution with us, even with we have the analytical solution with us, even though after fabricating and after developing the object for the first time, we used to apply experimental techniques and gather the results and gather the data from the actual object. These are the common methods for the experimental stress analysis. Among these, the measurement of the strain is very common. Okay, and we can measure the strain using mechanical strain gauge, which is one of the common technique in the laboratory. Extensometer, we use the extensometer for measuring large strain, not only in the laboratory but in the field also, for measuring the large strain. We may have the optical technique, acoustic, which is less common, acoustical or acoustic. Then we have electrical strain gauge. Among these, the resistance base is very common. Basically, they are cheap. In mechanical, there are extensometer and deflectometers. Important point is we can apply the strain gauge on the free surfaces. Free surface means there is no contact with another object. Okay, that surface is free. There would be the plane stress condition would apply on the free surface. We can measure strain on the surface, not within the object, inside the body. We cannot place strain gauge inside the object or inside the material. So it's not a point for the worry because major failure comes apart from the surface. Okay, there is no failure from the material within. In the case of concentration, which may arise because of the flaw within the material, because of the crack within the material, and that's a rare case. So we discussed this thing that we have to make the strain gauge of a certain length. We cannot measure such tiny small strain, because in metals like these are in the order of microns. A normal strain doesn't have any unit, so it is in the microns. And to measure such a small strain, we need to have a good length of the conductor so that it can give us a good signal. I mean, if we deform the conductor, the conductor of the electrical resistance strain gauge, then it will not generate such a good amount of readings or good amount of signals. So we have to make the strain gauge of a certain length or a good length so that it can give us a better signal. So the problem is if we make the strain gauge large, actually that will measure the strain, average strain over the length. However, we are interested in the strain at a certain point. Okay, so assume we don't know that we know the strain. Okay, so here we assume the constant strain, and we know that in the case of constant strain, the strain gauge will give you the same reading. There would be no error. Even in the case of the linear strain, if the strain is varying linearly from one point to another point, the strain gauge will not give any error, zero error. However, for higher order, it will give error, and the error is very intensive. It is with the order of. So the conclusion is we have to make the strain gauge as small as we can. To do what the scientists did, they used the conductor in the form of coil. Okay, so this is the active length of the strain gauge, but the conductor length is large. This is the solution for this problem. Then there is a sensitivity that we discussed. Actually, we are interested in measuring the axial strain. However, the transverse strain of the surface will also affect and deform the conductor, strain gauge conductor.
so that will also change the reading. This is about that. We concluded the error would be like that, and here you can see the transverse strain is directly affecting the error, and plus the gauge sensitivity factor. Okay, the sense of the conductor of the strain gauge, how much it is sensing the transverse strain. So that is covered in this transverse sensitivity factor. Am I audible? Yes, sir. Zabardast. Again, there is another problem. We cannot measure a small change of resistance. This is our old high school concept. Okay. Yes, we can measure the change of voltage with more accuracy. We can measure the change of resistance, by the way, but we can measure the change of voltage more accurately with amplified signals. Okay, so what we do, we transform, or we convert the signal of the change of the resistance into change of voltage signal. Okay, and to do that, we have two circuits. One is the potentiometer and one is the Wheatstone bridge. Wheatstone bridge is more accurate and more common, so we will discuss the Wheatstone bridge first. स्ट्रेन गेज हम R1 की जगह जो है ना वो स्ट्रेन गेज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम चारों रेजिस्टेंस पे भी स्ट्रेन गेज इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले भी मैंने डेरिवेशंस कराई थी, इसमें भी मैं थोड़ी सी डेरिवेशन आपको इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो कि वो रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं। ये डेरिवेशन एग्जाम्स का हिस्सा नहीं होंगी, ठीक है। Okay, so there are two ways of measuring the change of voltage signal. One is the direct readout and one is the null balance. In the null balance, which is more common, we balance the circuit to 0 initially, and then we apply the load. The load will deform the surface, and subsequently the resistance will also deform. Since the circuit is initially balanced, with the change of resistance, it would be unbalanced. Okay, and it will generate a signal of delta E. Getting the point? Yes, sir. जबरदस्त। तो हमने कौन सा चेंज ऑफ वोल्टेज मेजर करना है? VED, ओके, जिसको हम पहले इनिशियली बैलेंस कर देंगे। हम स्ट्रेन गेज की जो इनिशियल रेजिस्टेंस है R1, उसके हिसाब से इस पूरे सर्किट बैलेंस कर देंगे। व्हाट इज मीन बाय बैलेंस? Across B and D terminal, there should be 0 voltage. This is what is mean by balancing the circuit. Okay, जब बैलेंस कर दिया, फिर उसके बाद हम लोड अप्लाई करेंगे, कंडक्टर डिफॉर्म होगा, रेजिस्टेंस चेंज होगी, सर्किट अनबैलेंस हो जाएगा, वोल्टेज का सिग्नल आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो हम VAB कैसे निकालेंगे? हमें VBD कैसे निकालेंगे? हमें VAB पता है और VAD पता है, ठीक है, रेजिस्टेंस की वजह से। तो VAB is equal to this and VAD is equal to this, taking the difference to determine the VBD. ओके, तो इसको पहले बैलेंस किया हमने। जब बैलेंस किया तो हमें पता ये चला कि इसको बैलेंस करने के लिए, सर्किट को बैलेंस करने के लिए, द प्रोडक्ट ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ R1 एंड R3 should be equals to the product of the R2 and R4. The product of R1 and R3 should be equal to the product of the R2 and R4. ओके, तो हमें यहाँ पे स्ट्रेन गेज के साथ यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगानी है वो इस हिसाब से लगानी है कि इनका प्रोडक्ट जो है वो बराबर हो जाए, तो सर्किट बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, खैर बहरहाल जब सर्किट बैलेंस होगा तब हम रीडिंग लेना स्टार्ट करेंगे, उसके बाद लोड अप्लाई करेंगे। पहले सर्किट को बैलेंस करना जरूरी है, और बैलेंस करने के लिए हमें ये प्रोडक्ट जो है वो इक्वल करने हैं। दैट्स हाउ वी बैलेंस। ठीक है, यहां से आपको दिखा देता हूँ इस इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस स्ट्रेन गेज setup is here and you can see। तो हाँ जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे सर्किट्स, ये तो एक्सटेंसोमीटर है,
ये देखें, ये पाइपलाइंस में भी ये स्ट्रक्चर, स्टील स्ट्रक्चर है, स्टील बार में भी जो है ना वो डिफॉर्मेशन के लिए इंस्टॉल किए जाते हैं इस तरह की चीजें ना। ये देखिए यहाँ पे जो है ना इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस स्ट्रेन गेज लगा हुआ है। कैन यू सी, इसको एडहेसिव से लगाया हुआ है, और ये जो कंडक्टर है ये बिल्कुल फॉइल होता है, इसको डिफॉर्म करना बहुत आसान होता है, तो सरफेस के रिस्पॉन्स को इजीली कैप्चर करता है ये। अच्छा, यहाँ पे पोटेंशियोमीटर में आपको दिखाना चाह रहा हूँ। हाँ जी, ये आ गया यहाँ पे सर्किट्स। तो यहाँ पे जो है ना वो रेगुलेट वेरिएबल रेजिस्टेंस होती है, उसको आप एडजस्ट करते जाते हैं और सर्किट को बैलेंस करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं सेटअप और सर्किट्स। ये देखें आप, एक स्ट्रेन गेज लगाए हुए और ये यहाँ पे इनमें से जो है ना वो वेरिएबल रेजिस्टेंस होगी एक, उसको आप ट्यून करेंगे और सर्किट को बैलेंस करेंगे पहले। ठीक है, ये R1 की जगह लगाया हुआ है, यहाँ पे R2 की जगह लगाया हुआ है, तो नहीं R2, हाँ जी R2, तो ये है R1 R2, ये R4 पे लगाया हुआ है, तो वो तो कॉलिंग नेम है, खाली कॉलिंग नेम है। आप R1 की जगह लगाए, R4 की जगह लगाए, रिजल्ट शुड बी द सेम। ठीक है, आपने ये दोनों प्रोडक्ट जो है वो बैलेंस करना है। तो यहाँ पे एक जो है ना वो वेरिएबल रेजिस्टेंस होगी जिसको आप ट्यून करेंगे और सर्किट को बैलेंस करेंगे। ये देखिए यहाँ पे ट्यूनिंग का सिस्टम जो है ना कुछ होगा, ये बेसिकली रेगुलेटर है जो एक वेरिएबल रेजिस्टेंस को जो है वो बैलेंस करेगा। इट्स अ वेरी कॉमन टेक्निक एंड सम ऑफ यू विल मे अप्लाई और मे नीड टू अप्लाई इन द फील्ड। अच्छा, ये कहाँ चले गए हम लोग, यहाँ पे। Still I am audible, I am connected? Yes sir. चलिए जी, जबरदस्त। अच्छा जी, हमने ये थोड़ा सा लास्ट टाइम डिस्कस भी कर लिया था और वीडियो रिकॉर्डिंग में भी होगा। तो हमने E प्लस ई डेल्टा ई की वाली इक्वेशन बनाई, इसको हमने सिर्फ मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा है, ये कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। हमने अज्यूम ये किया है कि किसी भी रेजिस्टेंस में जो है स्ट्रेन गेज लगा हुआ है। ठीक है, तो सबके साथ हमने डेल्टा ऐड कर दिया। अभी राइट नाउ हम एक जर्नलाइज इक्वेशन ड्राइव कर रहे हैं, तो मैं अज्यूम ये कर रहा हूँ कि सब किसी एक के साथ भी जो है वो वेरिएबल रेजिस्टेंस हो सकती है, स्ट्रेन गेज हो सकता है। ठीक है, तो सबके साथ मैंने यहाँ पे इस चेंज ऑफ रेजिस्टेंस ऐड कर दी है। इनिशियली मेरा स्टार्टिंग पॉइंट जर्नलाइज इक्वेशन है, चारों में या किसी एक में, किसी में भी चेंज ऑफ रेजिस्टेंस हो सकती है, और वहां पे स्ट्रेन गेज में इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने सब में यहाँ पे डेल्टा आर ले लिया है। ठीक है, तो डेल्टा R1 यहाँ पे भी ऐड कर दिया, यहाँ पे डेल्टा R2 ऐड कर दिया। सिंस डेल्टा हमने सर्किट को बैलेंस करना है पहले, तो E would be equals to 0, तो whatever we have the value from here, that should be the value of change of the resistance, because of the change of the resistance or because of the load। डेल्टा E आ गया। डेल्टा E में जो है ना ये वाली जो इक्वेशन है दैट इज ऑफ की इंपॉर्टेंस। ठीक है, अब अगर यहाँ पे जो है ना वो हम चारों स्ट्रेन गेज इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमने इस तरह से स्ट्रेन गेज इस्तेमाल करने होंगे। फिर R2 और R4 को हम ऐसी लोकेशन में लगाएं जहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेन मेजर करना है। ठीक है, और R1 और R3 को हम ऐसी लोकेशंस पे लगाएं जहाँ पे हमने टेंसाइल स्ट्रेन को मेजर करना है। तो टेंसाइल स्ट्रेन को मेजर करेंगे तो वो पॉजिटिव चेंज ऑफ रेजिस्टेंस देगा। ये मेरे ख्याल से लास्ट टाइम में डिस्कस भी कर चुके थे। तो यहाँ पे रीडिंग जो है वो पॉजिटिव हो जाएंगी, और यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। अगर कंप्रेसिव स्ट्रेन है तो कंडक्टर की रेजिस्टेंस कम होगी और फाइनल रेजिस्टेंस कम होगी, तो जो डिफरेंस है वो नेगेटिव आएगा, और वो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे भी मेंशन किया हुआ है। अच्छा जी, लेट्स कम टू द जंप टू द इमीडिएट रिजल्ट्स। ठीक है, तो हम इस डेल्टा आर को ऐसे लिख सकते हैं, एन डेल्टा आर अपॉन आर। ठीक है, ये देखें ना, यहाँ पे हमने पॉजिटिव स्ट्रेन के लिए मेजर कर रहे हैं और ये नेगेटिव स्ट्रेन के लिए। अगर हमने एक ही रीडिंग्स को 4 स्ट्रेन गेज से मेजर करना है, ठीक है, जैसे कैंटिलीवर बीम में, आप लोग मुझे देख सकते हैं? यस सर। ठीक है, अगर मैं इसको सिंपली सपोर्टेड बीम, नॉट कैंटिलीवर बीम, अगर ये प्रेस हो रहा है, ठीक है, तो ऊपर वाली सरफेस पे कंप्रेसिव स्ट्रेन होगा और नीचे जो है वो टेंसाइल स्ट्रेन होगा। दोनों की रीडिंग बराबर होगी। ऊपर जित कंप्रेसिव स्ट्रेन होगा, नीचे उतना ही टेंसाइल स्ट्रेन होगा। ठीक है, नीचे उतना ही टेंसाइल स्ट्रेन होगा। तो हम काउंटर रीडिंग्स जो है ना वो मेजर कर रहे हैं। तो ऊपर बताएं मुझे कौन सी वाली स्ट्रेन लोकेशन पे स्ट्रेन गेज लगाना होगा, R2 R4 पे या R1 R3 पे? सर 2 and 4 नेगेटिव साइन वाली के साथ, लाइक। हाँ जी, R2 and R4 जो है वो ऊपर कनेक्ट करूंगा स्ट्रेन गेजेस,
और R1 और R1 और R3 स्ट्रेन गेज जो है वो नीचे कनेक्ट करूंगा मैं, ठीक है। और एक ही रीडिंग को मैं 4 स्ट्रेन गेज से मैं जो है वो मेजर कर रहा हूं, तो इसकी जो सेंसिटिविटी है सर्किट की वो सुपर हाई होगी, ठीक है। तो अभी हम वही चीज देखने लगे इस नेक्स्ट 4 स्लाइड्स में। तो खैर बारह, सर अगर अगर किसी सर आई हैड अ क्वेश्चन, अगर हमें किसी सिचुएशन में नहीं पता कि कंप्रेसिव और टेंसाइल कहाँ है और अगर हमने गलत लगा दिया तो फिर उससे क्या फर्क पड़ेगा? वो आपको जो है वो वोल्टेज तो देगा, बिल्कुल देगा, बिल्कुल चेंज ऑफ वोल्टेज देगा, वोल्टेज चेंज तो जरूर मिलेगा आपको, ठीक है। अच्छा, ऐसी सूरत में आपको जो है ना इतना घबराने की जरूरत नहीं है, आजकल तो वैसे ही बड़ा मशहूर जुमला है, घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये जो सिग्नल है ये आपको चेंज ऑफ रेजिस्टेंस की वजह से लाजमी मिलेगा सिग्नल, ठीक है। आप चाहें तो उस सर्किट को जो है वो स्विच कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो है ना यहाँ पे आपको देखो 2 टर्मिनल्स दिए हुए, एक फॉर द कंप्रेसिव, एक फॉर द टेंसाइल, इस तरह से होगा। तो आप वो जो स्ट्रेन गेज के जो दोनों कपलर है उसको दोनों जगह पे लगा के देख लें, सही से, ठीक है। तो ये इनमें से एक R1 के लिए होगा और एक, देखिए यहाँ पे सर्किट बना हुआ नजर आ रहा है आपको, ठीक है। तो एक R1 के लिए होगा, एक R2 के लिए, एक कंप्रेसिव और एक टेंसाइल के लिए होगा। तो आप दोनों के टर्मिनल्स निकालें सिंपली, और टर्मिनल्स निकाल ये यहाँ से जो टर्मिनल्स निकल रहे हैं, ठीक है, इनको लगा के आप स्विच करके देख लें कि वोल्टेज सिग्नल कहाँ से जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो वो आपको करेक्ट आपको पता चल जाएगा कि कंप्रेसिव है या टेंसाइल है। अच्छा जी, कहाँ गए? देखिए ये आपको इसके बॉक्स से अंदाजा होगा, इट्स नॉट अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड और एक्सपेंसिव पीस ऑफ गैजेट, ठीक है। ये बेसिकली जो है खाली मेजिंग बॉक्स है, ठीक है। एक सर्किट है यहाँ पे सिंपल सा, और साथ में जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस स्ट्रेन गेज है वो भी ज्यादा महंगे नहीं आते। इवन करेंसी कन्वर्जन के बाद भी आप लोगों को जो है ना एक सेंसर जो है ना 800-900 रुपए का मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो एक कंडक्टर ही है और 2 जो है वो पॉलीमर की फिल्म्स के दरमियान में जो है ना उसको किया हुआ है बेसिकली, सिंपली। अच्छा जी, कहाँ पे हैं ये? तो आप पेपर देख लेंगे। wait for a while. Go there. I'll be there. Okay, so one is the sensitivity of the gauge and one is the sensitivity of the circuit. So right now this is the sensitivity of the circuit, okay, and this is the sensitivity of the gauge. तो हमने यहाँ पे यही चीज नोट की थी ना कि V अपॉन जो ये वाली चेंज ऑफ रेजिस्टेंस पर यूनिट चेंज ऑफ क्या था पर यूनिट स्ट्रेन इज द सेंसिटिविटी ऑफ द गेज. गिव मी अ सेकंड प्लीज. So this is the sensitivity of the gauge. This is change of resistance per unit strain is the sensitivity of the gauge, and from this equation I am determining the sensitivity of the circuit. Okay, and this factor that has been derived here, this factor I'm calling as ratio of R2 and R1, the resistance of the gauge with the counter resistance. Okay, so anyhow, this actually also sensitivity of the circuit also dependent on factor. Its sensitivity of the circuit is dependent on the applied voltage, the this efficiency factor, the number of strain gauge, and the sensitivity of the gauge. जितना ज्यादा गेज सेंसिटिव होगा, सर्किट भी उतना सेंसिटिव होगा और हमें माइन्यूट जो है ना वो चेंज ऑफ रेजिस्टेंस पे चेंज ऑफ वोल्टेज ऑफर करेगा ज्यादा. ठीक है, जितने ज्यादा नंबर ऑफ स्ट्रेन गेज इस्तेमाल करेंगे उतना ज्यादा सर्किट जो है अच्छे सिग्नल्स जनरेट करेगा. ठीक है, जितना ज्यादा वोल्टेज हम इस्तेमाल करेंगे, कौन सा ये वोल्टेज है? अप्लाइड वोल्टेज.
उतनी बेहतर सर्किट की जो है ना वो सेंसिटिविटी होगी। लेकिन हमें यहाँ पे जो है ना वो लिमिट मिलती है। क्यों? अप्लाइड वोल्टेज में हमें क्यों लिमिट मिलती है? सर सेंसर की भी तो कोई ऑपरेटिंग कंडीशन होंगी। नहीं नहीं, ऑपरेटिंग कंडीशन ये है कि देखिए बात ये है कि ये टाइनी सा कंडक्टर ही है ना, ये जो, तो अगर मैं इस पे ज्यादा करंट और ज्यादा वोल्टेज दे दूं तो ये तो हीट अप होके जो है वो बर्न कर जाएगा, सही है ना, और बर्न कर गया तो फिर तो गेज काम ही नहीं करेगा। सही सर। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये अप्लाइड वोल्टेज है इसकी एक सर्टेन लिमिट है। मैं एक लिमिट से ज्यादा, एक पावर लिमिट से ज्यादा मैं इस गेज पे जो है ना वो बोझ नहीं डाल सकता, उसको उसको मैं जो है ना उसकी बियॉन्ड लिमिट जो है ना करंट और वोल्टेज या पावर नहीं दे सकता। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरर ने प्रोवाइड की भी होंगी ना। हाँ जी, ये आपको गेज पे मिलेगा, जब आप गेज परचेज करते हैं तो उस पर जो है ना वो पावर रेटिंग लिखी हुई होती है इसकी। ठीक है, तो आपको पता होता है कि ये आई थिंक ये 42.5 कुछ बनता है वोल्टेज। ये डिपेंड करेगा कि कितने वोल्टेज पे जो है ना ये ऑपरेट किया जा सकता है। खैर, हम कैसे बढ़ा सकते हैं, हम सर्किट की सेंसिटिविटी कैसे बढ़ा सकते हैं? या तो हम एक अच्छी का जो है ना वो यूज ए हायर सेंसिटिविटी एज हियर, ऐसा ही है। वी कैन यूज द मोर नंबर एज टू मेजर द सेम strain, ठीक है, एंड वी कैन कंट्रोल दिस थिंग, सर्किट एफिशिएंसी। ठीक है, तो ये सर्किट एफिशिएंसी किस पे डिपेंडेंट है? ये R2/R1 डिपेंडेंट है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि कैसे हम जो है ना वो सर्किट को ज्यादा सेंसिटिव कर सकते हैं। ठीक है, जितना सर्किट ज्यादा सेंसिटिव होगा उतनी हम माइन्यूट और स्मॉल मेजरमेंट्स जो है ना वो नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाते हैं केस 1 पे। हम व्हाट वी आर प्लानिंग टू डू, वी आर प्लानिंग टू मेजर द strain using one strain gauge, and we are putting that strain gauge in the location of R1 would be equals to the resistance of the strain gauge, and then we have we control R2 R4 in the circuits। ठीक है, ये हमने मेजर करना है डेल्टा E। तो सबसे पहले तो बैलेंस करना है सर्किट को। ठीक है, V इक्वल्स टू आई आर, इक्वल्स टू आई हम आर्बिटरी कोई भी नहीं, ये डिपेंडेंट है, ये गेज पे डिपेंडेंट है। तो यहाँ क्या कर दिया, इसको RT कर दिया, और ये PG हमारे पास कहां से आएगा? ये गेज के जो है ना वो रेटिंग में की स्पेसिफिकेशन पे PG मिलेगा हमें, पावर ऑफ द गेज। ठीक है, इस पावर ऑफ गेज को हमने वापस इस इक्वेशन प्लेस कर दिया। सो वी आर हैविंग दिस वोल्टेज, अप्लाइड, ये अप्लाइड इन चीजों पे डिपेंडेंट है। ठीक है, इस वोल्टेज को यू विल प्लेस इन दी सर्किट सेंसिटिविटी, एंड द फाइनल रिजल्ट इज लाइक दैट। ठीक है, तो सर्किट की सेंसिटिविटी गेज सेंसिटिविटी पे डिपेंडेंट है, पावर ऑफ द गेज पे डिपेंडेंट है, रेजिस्टेंस ऑफ द गेज पे डिपेंडेंट है, और साथ में ये स्टार्टिंग टर्म है। ठीक है, इसको जब आप बैलेंस करते हैं, देखिए ये R2/R1 है। ठीक है, चलिए ये बताएं, ये वाला फैक्टर मैक्सिमम कैसे हो सकता है? R की वैल्यू की 1, अगर 1 लेते हैं R की वैल्यू तो 1/1 ऐसा ही। अगर रेशियो R2/R1, if we take R2/R1 as 2, so then it would be equals to 2/1 plus 2. Can we increase this sensitivity? Yes sir, increase हो गया। निशात के अलावा भी है क्लास में कोई जो रिस्पॉन्स करे? नहीं सर, डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा आएगा इसमें। हाँ जी, डिनोमिनेटर, हाँ इंक्रीज होगा, आर को इंक्रीज करेंगे तो डिनोमिनेटर भी इंक्रीज होगा। तो हमें ये पता चला कि जब हम इसको ऑप्टिमाइज करते हैं तो आर की वैल्यू अगर 9 लें, 9, सो वी मे हैव अ गुड वैल्यू ऑफ ओवरऑल दिस टर्म। ठीक है, तो ये 9 की वैल्यू कैसे होगी ओवरऑल? आर बराबर है R2/R1 के। ठीक है, R2/R1 ऊपर आपको मैं दिखा देता हूं। सो वी हैव ये दिस इज R2/R1, और यहाँ पे हम R1 की जगह G इस्तेमाल कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक
स्ट्रेन गेज, ठीक है। तो हमें R2 इस तरह से सिलेक्ट करना है, R2 वुड बी अ वेरी रेजिस्टेंस, R2 वुड बी ए वेरिएबल रेजिस्टेंस। इसको हमने इस तरह से कंट्रोल करना है कि ये जो रेशियो है, ये 9 जो है ना वो, ठीक है भाई। अब तो गेज कर लिया, अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। गेज तो आपने सिलेक्ट कर लिया ना, एक दफा परचेज कर लिया मार्केट से, नाउ यू डू नॉट हैव एनी ऑप्शंस। अब आपके पास जो ऑप्शन है वो ये कि हम इस तरह से सर्किट को बैलेंस करें कि R2 जो है, R2 अपॉन R1 का जो रेशियो है वो 9 जो है ना वो बन जाए। In that case, we can further increase the sensitivity of the gauge. We can further increase the sensitivity of the, sorry, not the gauge, circuit. ठीक है, तो इसको जब आप मैनिपुलेट करते हैं तो यहाँ पे जो वोल्टेज आ रहा है, अगर हम फॉर एग्जांपल 120 ओम जो टिपिकल स्ट्रेन गेज है वो यूज करते हैं। टिपिकल स्ट्रेन गेज 120 ओम का हमने स्ट्रेन डेसिपेट की 0.15 वॉट है। डेसिपेटिंग पावर क्यों लिख रहा हूँ कि ये वो करंट पावर है जिस पे आप जब करंट देते हैं तो वो हीट अप होके अपनी एनर्जी को डेसिपेट कर देता है और बर्न नहीं होता, ठीक है। तो वी कैन ऑपरेट दिस स्ट्रेन गेज, लेट्स से ये एग्जांपल दी हुई है, लेट्स से इफ वी कैन ऑपरेट दिस स्ट्रेन गेज एट अ पावर ऑफ 0.15 वॉट, वोल्टेज देनी होगी 42.4 वोल्टेज हमें जो है इस पे सर्किट को ऑपरेट करना होगा टू गेट मैक्सिमम सर्किट एफिशिएंसी सेंसिटिविटी। ये तो वेरी करेगा ना एज पर द स्ट्रेन गेज, और जो डिफरेंट मैन्युफैक्चरर होगा। यस एग्जैक्टली। तो यही जो है ना ये टेक होम मैसेज है कि ज्यादा सेंसिटिव गेज इस्तेमाल करें, ज्यादा पावर रेटिंग का इस्तेमाल करें, ज्यादा रेजिस्टेंस वाला स्ट्रेन गेज इस्तेमाल करें, तो हम वोल्टेज सिग्नल्स ज्यादा जनरेट कर सकते हैं, एम्पलीफाइड वोल्टेज सिग्नल जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक दफा आपने गेज परचेज कर लिया तो उसकी स्पेसिफिकेशन फिक्स हो गई। सर्किट गेज जो है ना वो गेज सेंसिटिविटी पता हो गई, पावर ऑफ द गेज पता हो गई, रेजिस्टेंस ऑफ द गेज पता हो गई। अभी भी आपके पास एक रूम है जिससे आप सर्किट की सेंसिटिविटी बढ़ा सकते हैं। कैसे? R2 की राइट वैल्यू सिलेक्ट करके। R2 आपके कंट्रोल में, बाय कंट्रोल द R2 यू कैन इंक्रीज दिस फैक्टर एंड सेंसिटिविटी, ठीक है। तो गुड क्वेश्चन। अच्छा जी, एक और सिनेरियो है। अब हम जिस सरफेस पे लगा रहे हैं, जिस सरफेस पे स्ट्रेन कर रहे हैं, अगर वो रूम टेम्परेचर से हटके है तो आप कुछ गैस कर सकते कि क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल आप किसी बॉयलर की सरफेस के ऊपर स्ट्रेन गेज फिक्स कर रहे हैं, माउंट कर रहे हैं, तो बॉयलर तो हाई टेम्परेचर पे होगा, उसकी जो वॉल होगी वो तो हाई टेम्परेचर पे होगी, तो फिर टेम्परेचर की वजह से भी तो चेंज ऑफ रेजिस्टेंस हो सकती होगी। डेफिनेटली होगी। हाँ जी। तो अब ये स्ट्रेन गेज जो है वो बेसिकली डिफॉर्मेशन की वजह से चेंज ऑफ रेजिस्टेंस के सिग्नल सिर्फ जनरेट नहीं करेगा, बल्कि टेम्परेचर की वजह से भी चेंज ऑफ रेजिस्टेंस के सिग्नल जनरेट हो रहे होंगे, तो फिर तो रीडिंग इनएक्यूरेट आ जाएगी। यस सर। सो टू कवर दैट थिंग वी यूज अ डमी गेज। हम डमी गेज एक ऐसी लोकेशन में लगाएंगे बॉयलर के ऊपर जो सेम टेम्परेचर पे होगा, लेकिन यहां पे जीरो डिफॉर्मेशन होगी। ड्यूरिंग द मेजरमेंट डमी गेज पे जीरो डिफॉर्मेशन होगी, बट इट शुड बी ऑन द सेम टेम्परेचर लाइक द एक्टिव स्ट्रेन गेज। तो व्हाट इट विल डू, इट विल बेसिकली कैंसिल आउट द टेम्परेचर इफेक्ट, ठीक है। तो अभी हम वो डेरिवेशन करते हैं, तो अभी आप देखिएगा, ठीक है। तो वी वांट, सर कैन यू रिपीट दिस अगेन? हाँ जी, मैं रिपीट कर रहा हूँ स्टेटमेंट। इफ वी यूज द स्ट्रेन गेज ऑन अ सरफेस दैट is at higher temperature or at lower temperature, then the change of the resistance signal will not only include the effect of the deformation, but it also include the effect of the temperature. So what we have to measure? We have to measure the deformation signal, or we have to measure the temperature effect? Deformation signal. Deformation. So the effect of the temperature is unwanted, unnecessary. To do that, to cancel out of the effect, we use another strain gauge of the same specification. We put like that the heating effect, temperature effect. We place that strain gauge of the same specification on the same object
that in a location where the dummy gauge will experience the same temperature but have the zero deformation in it. Okay, sir, got it. Okay, so now this is the derivation. So we have the voltage is equals to 2IgRg. 2IgRg कैसे हो गया ये? क्योंकि R1 और R2 दोनों सेम रेजिस्टेंसेस हैं. इनमें से करंट जो जा रहा है वो वोल्टेज जो डिवाइड होगा वो आधा यहाँ पे डिवाइड होगा और आधा यहाँ पे डिवाइड होगा. ठीक है, तो यहाँ पे वोल्टेज कितना आ गया? वोल्टेज वुड बी इक्वल्स टू 2IgRg. ठीक है, एंड SD subsequently equals to the voltage R upon R1 plus R and SD. तो यहाँ पे हमें बेसिकली वोल्टेज ही निकालना होता है. ये इस पूरी सिस्टम में वोल्टेज निकालना है. तो वोल्टेज की जगह हमने जगह IgRg प्लेस कर दिया. IG को मैंने इन टर्म्स ऑफ पावर एक्सप्रेस, वो मुझे रेटिंग में गेज के बॉक्स के ऊपर लिखी होगी. ये जो n है ये नंबर ऑफ एक्टिव स्ट्रेन गेज है. यहाँ पे एक्टिव जो है ना वो स्ट्रेन गेज 1 ही है जो कि डिफॉर्मेशन मेजर करेगा. दूसरा जो है वो डमी गेज है, दैट इज नॉट द एक्टिव वन. इट विल नॉट मेजर द डिफॉर्मेशन. It will just measure the effect of the temperature. Okay, so that's why I am placing here 1 here. Okay, तो यहाँ पे जो सेंसिटिविटी निकल रही है वो ये वाली निकल रही है. ठीक है, अच्छा, अब ये बताएं कौन सा सर्किट बेहतर है इन टर्म्स ऑफ दिस सर्किट इज बेटर और दिस वन? हाँ जी, ये बेहतर है. यहाँ पे जो ये चीज तो कॉमन हो गई ना, दिस थिंग एंड दिस थिंग इज सेम. ये जो फैक्टर है सर्किट एफिशिएंसी, दिस इज डिफरेंट. तो यहाँ पे तो सर्किट एफिशिएंसी फिक्स है. ये कितनी है? हाफ. सर ऊपर वाला बेहतर है, मुझको और ऊपर वाला बेहतर है. ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर करेक्शन, in terms of correcting the temperature, this one is better. No doubt it will have less sensitivity, but it will not include the effect of temperature change. Sir, Here, this will include the effect of temperature. It is sensitive to the temperature, but its efficiency efficiency is higher. अब हमारे पास, हम तो इंजीनियर हैं, हमें तो बहुत सारी जो है ना वो वे आउट्स पता है. तो हमें डमी को बजाय पे लगाने के हम कर सकते. ठीक है, केस 3 में हमने ये किया. केस 3 में हमने किया कि डमी को हमने बजाय यहाँ पे लगाने के हमने डमी को यहाँ पे लगा दिया. निशाद, मैं अभी आपके सवाल का जवाब देता हूँ, मुझे क्विज भी स्टार्ट करवाना है. ठीक है, तो डमी को जब यहाँ पे लगाया तो अब क्या हुआ? अब फायदा ये हुआ कि सर्किट की एफिशिएंसी वही वाली हो गई जो केस 1 था और करेक्शन भी इंक्लूड हो गया. हम डमी को यहाँ पे लगा सकते हैं या यहाँ पे लगा सकते हैं, हम डमी को यहाँ पे नहीं लगा सकते. वजह कोई मुझे बताएगा? R4 की जगह हम इसके अक्रॉस R3 की जगह डमी नहीं लगा सकते हैं. एनी रीजन? सर दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास अपोजिट साइड्स का इक्वल होता है, तो अगर हम अपोजिट में लगा देंगे तो जबरदस्त. अगर हम यहाँ पे दोनों जगह सेम गेज लगा देंगे तो सर्किट को भाई बैलेंस कैसे करेंगे? ठीक है, तो फिर तो बैलेंस करने के लिए एक ही तरीका है कि यहाँ पे भी आप स्ट्रेन गेज लगा दें. ठीक है, तो सर्किट को बैलेंस करने के लिए या तो हम डमी यहाँ पे प्लेस करेंगे या फिर यहाँ पे, और फिर दूसरी रेजिस्टेंस रेगुलेटर से वेरिएबल रेजिस्टेंस होगी, उसको रेगुलेटर से एडजस्ट करेंगे. जबरदस्त. तो दिस इज द बेस्ट सर्किट इन अ सेंस कि इसकी सेंसिटिविटी केस 1 के बराबर है और ये टेम्परेचर इफेक्ट को भी कैंसिल आउट कर रहा है. Now let's do the closing thing. I am interested in measuring the same change of strain, same deformation using 4 strain gauges, 2 at the top and 2 at the bottom. But remember, we are measuring the same strain. This is the only case. Simply supported cantilever, इस तरह के जो cases हैं जिसमें टेंसाइल है, नीचे कंप्रेसिव है, इन कंडीशंस में हम ये वाला सर्किट यूज कर सकते हैं. आई एम यूजिंग 4 स्ट्रेन गेज. मैंने सारे सर्किट्स की जगह ये इसको बैलेंस करना पड़ेगा सर्किट को. नो सर. नहीं सर, बैलेंस उस वक्त करना पड़ेगा अगर आप अलग अलग स्ट्रेन गेजेस इस्तेमाल करें, अलग अलग सेंसिटिविटी, अलग अलग टाइप के. बट यहाँ पे हम जब भी यूज करेंगे हम एक ही टाइप का, एक ही रेजिस्टेंस, एक ही पावर रेटिंग का स्ट्रेन गेज इस्तेमाल करेंगे चारों जगह. ठीक है, तो इस यहाँ पे जो है वो एन एक्टिव स्ट्रेन गेज 4 हो जाएगा.
n जो would be turn out to be 4. ठीक है, so this would be give the best sensitivity. Same sensitivity का strain gauge है, but it will generate twice signal. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डबल सिग्नल जनरेट करेगा वोल्टेज का, तो हम यहाँ से ज्यादा सेंसिटिव कैलकुलेशन कर सकते हैं, टाइनी स्मॉल स्ट्रेन और डिफॉर्मेशन को मेजर कर सकता हूं मैं. गॉट इट? अच्छा जी, क्लोज ही हो गया ये सारा. यहाँ पे सिर्फ एक बाकी ये पोटेंशियोमीटर है, दैट इज वेरी सिंपल. हाँ, अब आप देखें कि हम जो है ना सरफेस में हमें ये तो एक स्ट्रेन मेजर करेगा. हमें मेजर कितने करने होते हैं सरफेस पे स्ट्रेन? कार्टेशियन कंपोनेंट कितने चाहिए होते हैं सरफेस पे? कार्टेशियन कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेन कितने होते हैं सर? सरफेस पे तो 2 होंगे ना? 3 होते हैं ना. अच्छा, एप्सिलॉन एक्स, एप्सिलॉन वाई वाई और गामा एक्स वाई. अच्छा जी, ये एक और भी मजे की बात है. ये जो स्ट्रेन गेज है ये नॉर्मल स्ट्रेन मेजर करता है, शेयर स्ट्रेन तो मेजर ही नहीं करता. तो ये तो फिर प्रॉब्लम हो गई. ठीक है, तो शेयर स्ट्रेन मेजर करने के लिए गेज नहीं होता. होता है, लेकिन वो बेसिकली नॉर्मल स्ट्रेन को मेजर करके कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, तो हमने यहां से नॉर्मल स्ट्रेन मेजर करना है. हमने एक और गेज इस्तेमाल करना है, 3 गेजेस इस्तेमाल करना है टू मेजर दी 3 स्ट्रेन, 3 कंपोनेंट्स ऑफ कार्टेशियन कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेन. ठीक है, तो अब मैन्युफैक्चरर्स को पता है कि आपको 3 स्ट्रेन गेज इस्तेमाल करने हैं. एक तो तरीका ये है कि आप इसको 0 डिग्री पे लगाएं, फिर एक्यूरेटली इसको 45 या 60 पे लगाएं, फिर इसको जो है ना एक्यूरेटली 90 पे लगाएं. तो व्हाई शुड मैन्युफैक्चरर थिंक व्हाई शुड आई गिव देम इन एन असेंबली? क्योंकि उसमें 1 या 2 डिग्री आप गलत एंगल पे लगा देते हैं तो फिर तो मेजरमेंट गलत आएंगी. तो उन्होंने उसको पहले से एक्यूरेटली असेंबल करके एक रोजेट बना दिया. दिस इज कॉल्ड एज रोजेट, स्ट्रेन गेज रोजेट. इट्स नथिंग but a combination of 3 strain gauges at different angles. Rather than you place the single strain gauge at an angle of 0, 45 or any angle to measure the 3 strain, you use a combination or assembly of strain gauges, and that is called as rosette. तो अब इसमें करना क्या है कि इसमें जो है ना वो strain transformation equation आपने 3 दफा उसको इस्तेमाल कर लेना है. स्ट्रेन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन मैं आपको डायरेक्टली कहां से दिखाऊं? हाँ जी, ये देखें ये स्ट्रेन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है. हमें चाहिए क्या क्या इसमें से? हमें एप्सिलॉन एक्स एक्स चाहिए, एप्सिलॉन वाई वाई और तो हम 3 स्ट्रेन गेज इस्तेमाल कर लेते हैं. एक को मैं कह देता हूं एप्सिलॉन ए, एक को कह देता हूं एप्सिलॉन बी और एक को कह देता हूं एप्सिलॉन सी. नाउ आई हैव reading epsilon A, B and C. Excuse me, sir. So using these 3 equations, can I determine epsilon X, epsilon Y and gamma XY? I have 3 equations now. I place gauge A at an angle of theta A. अब ये 0 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, भी हो सकता है. You angle. I place another strain gauge at an angle of theta B. तो थीटा बी भी पता होगा आपको. एंड आई प्लेस द थर्ड स्ट्रेन गेज एट एन एंगल ऑफ थीटा सी और उसकी रीडिंग आ गई यहां पे. सो दिस इज नथिंग एल्स बट सिंपली स्ट्रेन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन. अब इन इक्वेशंस को आपने 3 जो है ना आपस में सॉल्व करना है. एंड व्हाट यू हैव टू डिटरमाइन, you have to determine the Cartesian component of strain, epsilon xx, epsilon yy and gamma xy. Now are you taking the point कि gamma xy हम कैसे determine कर रहे हैं? We cannot measure the angular strain or shear strain. We will determine it using the normal strain by applying the strain transformation equation. ठीक है, तो अब ये रोजेट है. रोजेट में एक 0 पे लगा हुआ, एक 45 पे, एक 90 पे. कोई मसला नहीं है. आप इन इक्वेशंस को 3 दफा इस्तेमाल करना है, 0, 45 के. तो you will end these findings. ये टॉपिक मुझसे अगर कोई एक्सरसाइज करना है अच्छी बात है. क्लास की स्ट्रेंथ कितनी है अभी? 101 स्टूडेंट है.
सर एक सर सवाल है। सर हाँ जी स्टूडेंट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, टाइम थोड़ा बढ़ा दिएगा, 5 मिनट में कनेक्शन इशू हो सकते हैं सर थोड़े। जी नहीं, 5 मिनट्स में 5 MCQs हैं, आप कर सकते हैं बिल्कुल। और इट इज नॉट दी ओनली अटेम्प्ट, यू वुड बी गिवन 4 attempts, ठीक है? तो आई विल नॉट accept any excuses. What you have to do is first write down your seat number right now. Type your seat number. Give me your Excuse me, attendance. sir. हाँ जी सर वो काफी सारे स्टूडेंट्स में वो एंटर नहीं कर पा रहे, शायद लिमिट हुई हुई है सीट्स। मैं भी अभी निकल गया था, अभी एंटर हो पाया हूँ। ठीक है, मैं व्हाट्सएप पे अनाउंस कर देता हूँ कि मैं क्विज अनाउंस करने लगा हूँ, ठीक है? सीआर जरा अनाउंस कर दें कि क्विज ओपन करने लगा हूँ और यू वुड बी गिवन 5 minutes. Those who are unable to join, please write down their seat number here. Rafe, or I will take your attendance from the quiz. Type your seat number here. Only seat number. Danish, just seat number. मुझे डेटा है ना वो फिर निकालने में just type your seat number. सर आपने कहा 4 अटेम्प्ट दूंगा, 4 अटेम्प्ट का क्या मतलब? 10 मार्क्स आपके क्विजेस के मैं कंसिडर कर रहा हूँ, 4 अटेम्प्ट दूंगा, 5 मार्क्स की ईच, और उसमें से 2 काउंट होंगे। Okay guys, are you ready for the quiz? Can you see the screen? I am going to assign you guys. So this is the quiz and edit 5 points. Deadline is today is Friday 15th. Yes, 15th. Sir, can we leave the meeting? Sorry? Can we leave this meeting? नहीं आप रहें, मेरे ख्याल से मीटिंग में रहें, बिल्कुल राइट, ठीक है? जो नहीं आ सके हैं उनके लिए कोई मसला नहीं है, लेकिन जो अभी हैं चेकआउट ना करें प्लीज। Right now it's 9:51, so I should assign it for 57. 50. Okay guys, all the best. Sir, make it 9. 11:58 ka. It's fine. All the best. It has been assigned. Convey the message in the WhatsApp group, those who are unable to join. Did you receive on your stream? No sir. Yes sir. Yes sir, received. चलें जी, अटेम्प्ट करें। ये क्लोज हो जाएगा, मैं क्लोज कर दूंगा रिस्पॉन्स। I will close accepting responses at 58. सर मैं रजिस्टर खोल सकता हूँ अपना? Sorry? क्लास रजिस्टर यूज कर सकता हूँ? Beta, I cannot hear you.
I have received one response. So quick. Two responses. I have received 2 responses. That's a good sign. Looks like a easy quiz. I have received 12 responses. I assigned you at 52. So Excuse me. हाँ जी बताइए. सर ये मेरे यहाँ पे अपलोड नहीं हो रहा, ना ही लैपटॉप पे स्ट्रीम हो रहा है, ना ही उस पे हो रहा है. मैं रिफ्रेश भी कर रहा हूँ. सॉरी, नॉट माय इशू. टेक्निकली मैं आपको ज्यादा अटेम्प्ट दूंगा, नहीं अटेम्प्ट कर सकते, कोई मसला नहीं है, ठीक है. नहीं सर, वो मेरे नेट सारी जगह पे सही है. सर मेरा भी यही मसला है. हाँ जी, क्या हो रहा है मसला? सर स्टिल नॉट अपलोडेड शो नहीं हो रहा कहीं पर भी. असाइन हो चुका है होमवर्क. रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं मेरे पास. सर आई कैन सेंड यू स्क्रीनशॉट. बाद में स्क्रीन नजर आ रही होगी मेरी ना आपको. देखें रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं कंटिन्यूअसली. 37 रिस्पॉन्सेज तो आ भी चुके हैं. किसी एक साहब के जो है ना सिर्फ दो मार्क्स आए. सर सबमिट कर दिया तो लीव कर दें. टर्न इन कर दीजिएगा प्लीज. टर्न इन करेंगे तो मेरे पास रिस्पॉन्स आ जाएगा. 56. आई विल क्लोज एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेज इन 2 minutes. देखिए, यू हैव साइन द कॉन्सेंट. अगर आप इलीगल जो है ना वो एकेडमिक जो है ना वो मिसकंडक्ट करेंगे तो इखलाकी तौर पे आप जिम्मेदार होंगे, ठीक है. नोबडी कैन स्टॉप चीटिंग. I have received 89 responses so far. It's 9:57 now. In 1 minute, I will stop accepting responses. सर हमारा टेस्ट हो गया, लीव कर. सॉरी. हाँ जी, जो जिनका हो गया वो चेक आउट कर लें. Those who are done, they can check out from the class. Thank you. I am going to stop accepting responses manually. सर काफी देर से मैं क्लास में एंटर नहीं हो पा रहा था, फुल थी, तो आप अटेंडेंस मार्क कर दिएगा मेरी. 108. I am going to stop accepting responses. Those who want to submit it now. Thank you guys. You can check out from the class. It was a good session. Do not write your name. I just need your seat number. Please type your seat number in the chat area.